اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چینل اینٹی قادیانی آفیشل میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہمیں حقیقت مل گئی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں حقیقی دین اسلام کے لیے کیوں منتخب کیا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد عطا فرمایا، وہ نبی جس نے ہمیں حقیقی اسلام کا شعور دیا۔ مرزا غلام قادیانی اور انجینئر مرزا جہلمی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے پہلے سے مکمل مذہب میں نئی نئی چیزیں شامل کریں۔ الحمدللہ دین اسلام ہمیں پہلے ہی مکمل حالت میں مل چکا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ چینل کبھی نہیں بناتے، لیکن اسلام کے موجودہ حالات میں ہمیں اس چینل کو بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے تیار کردہ سازشوں اور روز بروز بڑھتے ہوئے فتنوں کو سامنے لایا جا سکے۔ قادیانیت ایک چھوٹا سا فتنہ ہے، لیکن ایک نیا فتنہ بھی اسلام میں گھس گیا ہے، اور یہ فتنہ نوعمر کے معصوم مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہمارے نوعمر مسلمان اس فتنے میں داخل ہونے کے لیے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلام کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر ہے اور انہیں صحیح اور غلط راستے کا شعور نہیں ہے۔ در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے والدین کی بڑی غلطی ہے کہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیم دینے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ان کے بچے مرزا انجینئر جونیئر جہلمی کے مذہب کی پیروی کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس چینل میں ہم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور مرزا جونیئر جہلمی کے عظیم فرمان کے بارے میں تمام فتنوں کو بے نقاب کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرزا جونیئر جہلمی نہ تو عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، اور نہ کوئی مفتی ہے، اور اگر کچھ ہے تو صرف مرزا غلام قادیانی سے بلا واسطہ تعلق ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم قادیانی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور مرزائیت کے ساتھ بھی، اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ ہم سچے مسلمانوں اور مجاہدین ختم نبوت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اس چینل پر آپ کے مکمل تعاون کی ضرورت ہے، اور برائے کرم ہماری ویڈیوز کو مختلف گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ اینٹی قادیانی آفیشل چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں موجود مواد کسی دوسرے شخص کی ویڈیو، ویب سائٹ، مضمون یا کتابوں سے لیا گیا ہے۔ ہم یہ ویڈیو اور چینل عوام کے ایمان کی اصلاح کے لیے بناتے ہیں۔ یہ مواد کسی قسم کی بدسلوکی کے لیے نہیں ہے یا کسی کی شخصیت کے لیے کوئی نفرت انگیز تقریر نہیں ہے، اس لیے چینل اینٹی قادیانی آفیشل کسی دوسرے شخص کے تبصرے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ چینل ہمیشہ تمام برے عقائد کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہیں، اور ہم صرف برے عقائد کے خلاف ہیں، افراد کے نہیں، اور دوسرے افراد کے برے عقائد کے ہم بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ لہٰذا کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں ایک بار جھانک لینا زیادہ ضروری ہے۔ مسلمانوں، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم پیغام سن لیں۔ یہ پیغام قبلہ مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب کی طرف سے ہے۔ پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں ایک عظیم الشان دینی مدرسے کا قیام کیا جائے گا، اور اس مدرسے کا نام جامعہ ختمی نبوت للبنات ہوگا، جو کہ قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہونے والی خواتین کی تعلیم و تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے ایک عظیم درسگاہ کا قیام ہوگا۔ اس کے اغراض و مقاصد یہ ہوں گے: نمبر 1، جو لڑکیاں قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوتی ہیں ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ایسی خواتین کو دیر الامان مہیا کرنا، یعنی قیام و طعام کا انتظام کرنا۔ نمبر 2، نو مسلم خواتین کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، دینی تعلیم درس نظامی مکمل اور دنیاوی تعلیم MA پنجاب یونیورسٹی کے تحت کروانا۔ نمبر 3، کمپیوٹر کورسز جیسا کہ ٹائپنگ، گرافکس ڈیزائننگ، MS آفس، سوشل میڈیا ورکنگ، اور اس کے علاوہ دیگر کورسز جیسے کہ سلائی کورس، کڑھائی کورس اور بیوٹیشن کورس کروانا، تاکہ تمام نو مسلم خواتین اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکی۔ نمبر 4، نہ صرف ایکس قادیانی خواتین بلکہ پاکستان بھر سے آنے والی یتیم، بیوہ، مطلقہ خواتین کی بھی تعلیم و تربیت کرنا۔ اس عظیم درسگاہ کو قائم کرنے کا پہلا مرحلہ گجرانوالہ کے پوش علاقے میں اراضی خریدنا ہے، جہاں سیکیورٹی، صفائی ستھرائی اور تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ اس اراضی کی قیمت 20 ملین ہے۔ اس عظیم درسگاہ کی تعمیر کا پہلا مرحلہ اس اراضی کو خریدنا ہے، اور دوسرا مرحلہ اس کی تعمیر کا ہوگا انشاءاللہ۔ لہذا اب ہم دردمند حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدقات واجبات اور صدقات نافلہ جامعہ ختم نبوت للبنات کو ادا کریں، اور یہ پیغام اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔
کیونکہ اگر جلد از جلد اس اراضی کو خرید لیا جائے اور بعد میں اس کی تعمیر شروع کی جا سکے انشاءاللہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جھوٹے قادیانی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور وہ کسی بھی وقت چند منٹوں میں اللہ پاک سے ملاقات کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم جرمنی سے تعلق رکھنے والے زاہد خان قذاب کی بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں تمام قادیانیوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، زیادہ تر انہوں نے کچھ ایسا کہا جو عام لوگوں کے ذہنوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر تمام قادیانی غیر معمولی ذہنیت کے حامل ہیں، ایک مینٹل کیس کی طرح۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو دیکھ کر الجھن میں نہ پڑیں کیونکہ قادیانی کلچر پاگل پن، احمق، جھوٹے اور فراڈیوں کا مرکب ہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ جناب زاہد خان صاحب بار بار آپ کو میسج کر رہے ہیں، ہم لائیو آ چکے ہیں تقریباً 2-2.5 منٹ سے۔ جی ہیلو زاہد خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے زاہد خان صاحب؟ جی آپ کی فوٹو نظر نہیں آ رہی۔ جی وہ فوٹو نظر نہیں آ رہی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا آڈیو میں، ابھی ہمارا پہلا جو ہے وہ ایپیسوڈ ہے، ہم کر رہے ہیں ذرا کیمرہ وغیرہ کا سیٹ اپ۔ آپ کا تعلق عیسائیت سے ہے؟ زاہد خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم مسلمان ہیں۔ ترانے جو ہیں ختم نبوت کے وہ نہیں بجانے اگلی دفعہ۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، ذرا ادھر دیکھ کے بات کریں سامنے، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اگلی دفعہ ترانے نہیں بجانے، ٹھیک ہے؟ ختم نبوت کے کون سے ترانے زاہد صاحب؟ ابھی میں سن رہا تھا۔ نہیں پتہ نہیں آپ نے کہاں سن لیا، ہمیں 3 منٹ ہوئے ہیں لائیو آئے ہوئے، تو ہمارے تو کسی ناظرین نے نہیں سنے ہیں، کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر کہیں سنے ہیں تو۔ ٹھیک ہے بہرحال زاہد خان صاحب میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ انٹرویو ہم آپ کا کر رہے ہیں نہ کہ آپ ہمارا کر رہے ہیں، تو آپ نے جیسا کہ کہا تھا کہ ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے تو جلدی سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی جو آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، غلط بات کی تو یہ انٹرویو وہیں ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ارے زاہد خان صاحب آپ اتنا غصہ پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہم سوالات سنیں نا، سنیں، ہاں جی کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہی ہمارا سوال ہوگا ہمارا بھی اور یقیناً ہمارے سننے والے ناظرین کا بھی، وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف مختصر جو ہے وہ پیش کر دیں کیونکہ وقت آپ نے خود بتایا تھا کہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے، تو اپنا تعارف کروا دیں ذرا چند منٹ کے اندر۔ تعارف میں آپ کو مختصر کروا دیتا ہوں۔ لاہور سے میرا تعلق ہے اور مجھے کوئی 45 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یورپ میں۔ اچھا یورپ کے کس کنٹری میں آپ؟ جرمنی میں۔ جرمنی کے اندر، اچھا جی۔ جی تو آپ کس مذہب کے اوپر ہیں، یا مطلب اپنا مذہبی حوالے سے کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے کہ لائک مسلم ہیں، کرسچن ہیں یا کیا ہیں؟ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا میری خدا سے ملاقات ہوئی ہے۔ میرا تعلق جو ہے شروع میں صوفیت سے ہے۔ صوفیت سے تعلق کیا آپ کا؟ تو اگر اسے آپ اسلام سے جوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلیں اس کے اوپر ہم آتے ہیں، اس کے ڈیٹیلز کے اوپر ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال چلیں ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ لاہور سے آپ کا تعلق تھا، ابھی آپ جرمنی کے اندر ہیں اور 45 سال سے آپ غالباً اپنا یہ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ یورپ میں ہوں جی یورپ جرمنی کے اندر۔ اچھا ہمارا دوسرا سوال جو ہے کہ آپ کا دعویٰ یا کلیم کیا ہے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں آپ کا کیا دعویٰ ہے، اس کو مختصر اور جامع الفاظ میں ہمارے ناظرین کے سامنے آپ پیش کر دیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے۔ میرا دعویٰ نہیں ہے، میرا اعلان ہے۔ ٹھیک ہے آپ اعلان کہہ لیں اسے، جی جی سن لیں، بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں۔ تو وہ یہ ہے کہ میری ملاقات حق تعالیٰ سے ہوئی اور حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ مذہب اور شریعت کا دور اب ختم ہوا، اب جو دور ہے وہ ایک انسانیت کا دور ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ تو جو میرے ماننے والے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ون فیملی ورلڈ، ایک انسان۔ ون فیملی نہیں سوری، ون فیملی برڈ یا ورڈ؟ ورلڈ، ورلڈ، اوکے ورلڈ، ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ، اوکے۔ تو یہ ہماری تعلیمات ہیں، شبیم کے فراغ یہ تعلیمات ہیں۔ اس پہ خان فلاق پر آپ میری کتابیں دیکھ سکتے ہیں جو مجھ پر کلام کیا خدا نے کہ وہ نظام کیسے آئے گا۔
नहीं, इसको समराइज करें ना जाहिद खान साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, इसको समराइज करें ना कि ये तो आपने डिटेल्स बता दी ना कि यूं मुलाकात हुई और मेरी किताबें हैं और ये है और आपके फॉलोअर्स हैं, मतलब अपनी जात को आप क्या कहते हैं? आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप कोई वली हैं, आप कोई मुजद्दद हैं? आप समराइज करें ना ताकि हमारे नाज़रीन को आसानी हो जाए समझने के लिए कि आप हैं क्या। मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, मसीह ज़मा भी हूँ, और अच्छा। इससे बढ़कर खुदा ने मुझे अपना दिल कह के पुकारा है। अगर अच्छा। फर्क चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ। चले उसके ऊपर हम आएंगे, अभी जरा थोड़ा सा तारुफ आपका पेश कर रहे हैं और थोड़ा सा आपके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जरा अगला सवाल है हमारा कि ये सारा जो सिलसिला है आपका, आपको इसके बारे में कैसे, यानी स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे आपको इल्म हुआ? अगर आप अपनी कोई शुरुआत बताएं। Very early stages of age of 12 year old, 12 साल की उम्र में, इंग्लिश में बोलूं या उर्दू में? जैसे आप पसंद करें, लेकिन अगर आप उर्दू बोल देंगे तो हमारे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स पाकिस्तान से हैं तो उनको समझने के लिए आसानी हो जाएगी, वरना आप जैसे चाहें आप बोल सकते हैं। 12 साल की मैं दुआ कर रहा था तो मेरे गिर्द नूर आ खड़ा हुआ। उस नूर के आले दुआले कंच नूर नीला, फरिश्ते खड़े थे और वो मुझे लेके चले। यहाँ मेरी पहली मुलाकात होती है रब्बुल आलमीन से, और यहाँ ही इस पहली मुलाकात में हक ताला ने मुझे दीदार कराया। और ये पहला वाकया मेरे साथ 12 साल की उम्र में हुआ। उसके बाद दूसरा वाकया 16 साल की उम्र में हुआ, जब हक ताला ने मुझे फिर बुलाया और कहा अपने मजहब, कल्चर, ट्रेडिशन को छोड़, लीव योर रिलीजन एंड ट्रेडिशन एंड योर कल्चर एंड फॉर बेस्ट आई हैव चूजन। ओके 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 जाहिद साहब, हमने शुरुआत जानना चाहिए थी। 12 साल की उम्र में आपने अल्लाह को देख लिया, या आप हक ताला कहना चाहते हैं? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके क्या नजरियात हैं, क्या अकायद हैं, आप उनको क्या मानते हैं? वही अकायद हैं, आदम से लेके जितने अंबिया हैं उनमें मोहम्मद रसूल भी नबी हैं, और नबियों के पास फरिश्ते पैगाम लेके आते हैं, और वो अपने पैगाम को, उनमें से जो खास पैगाम है वो तौहीद बारी ताला है। वही मेरा यकीन और अकीदा है। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमानों का जो अकीदा है, जो इजमा है, वो ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उनके ऊपर खत्म नबूवत हो चुकी है, उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तो आप इस पॉइंट को तो मेरे ख्याल से नहीं मानते हैं, क्योंकि आप खुद को भी नबी कहते हैं। जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। ये जो कि नबी नहीं आएगा, ये मुसलमानों के दिमाग में एक फतूर है, क्योंकि कुरान इसकी तायीद नहीं करता। और आप अपना बताएं ना, आप अपना बताएं, ये छोड़ें फितूर है या कुरान है, हम डिटेल में आ जाएंगे, अभी अगर टाइम है तो डिटेल पे आएंगे। मुख्तसर जरा सवालात, 2 सवाल और मेरे रह गए, उनके जवाब दे दें, फिर हम डिटेल के ऊपर आते हैं। कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहेंगे यकीनन। बात ना करें, सिर्फ मुख्तसर सवाल करके जो हाँ, अपना बताएं ना, आप अपना बताएं ना, आप डिटेल में बहुत चले जाते हैं, आप अपना बता दें। खामोश होंगे तो बोलूंगा ना। बोलें। अच्छा, बिल्कुल गलत अकीदा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि नबी नहीं आ सकता, बल्कि मुझे खुदा ने कहा है कि जो बुनियाद मैं रख रहा हूँ उसके निज़ाम की, ये जमीन अंबिया से भर जाएगी। तो ये अकीदा गलत है, इसको उठा के टोकरी में फेंक देना चाहिए। ठीक हो गया, ओके, आपका मुझे नजरिया पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अगर देखिए और इसका जवाब दीजिए। आप बोले। ओके, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम का एक शख्स गुजरा है कोई तकरीबन 150 साल पहले जी। उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? वो अल्लाह का नबी था, उसको मैंने जन्नतों में सफेद लिबास में देखा। अब दूसरी बात यह है कि उसने वो बातें नहीं बताई जो बतानी चाहिए थी, इसलिए ये अहमदियत एक फिरका है और इनमें मिली जुली भेड़े आपस में तालीमात हैं। लेकिन अगर वो बातें वो खोल देता जो खुदा ने कही थी तो फिर फर्क वाज़ेह हो जाता। तो वो अल्लाह का नबी है, ठीक है, उसे आप नबी मानते हैं। लेकिन अच्छा, ये अब्दुल गफार जंबा और एक नबाज 7 वाला, आजकल अहमद ईसा, और इंडिया से एक वदूद भी है, वो जो एक दिन ना वो कूड़े के ढेर के ऊपर खड़ा होकर वो कह रहा था कि मैं नबी हूं, और उधर एक मोर फिर रहा था तो मोर को देख के कहता जी ये दाबातुल अर्ज़ है, ये निकल आया, उसको आवाज दी, मोर आगे से थोड़ा सा हिला जुला, कहता देखे इसने गवाही दे दी है कि मैं नबी हूं। ये 1-2-3 बंदों के बारे में भी जरा, इनको भी नबी मानते हैं या नहीं मानते, हाँ या ना? मुझे इनकी कोई खबर नहीं। ओके हो गया, आपको इनकी खबर ही नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जरा हमें अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। अब जरा 2-3 मिनट में आपको दूंगा, आप ही बोलिए जो आपने सुपर नेचुरल किस्म की चीजें आपने एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में, जो आपको लगता है कि हमारे हवास से बाहर की चीजें हैं, कोई रूहानी बातें हैं और मार्फत की बातें हैं, जरा वो दीजिएगा। आपके पास 2 मिनट है। जो सबसे पहली बात है वो खुदा की है। मैं हजारों दफा खुदा से मिल चुका हूं, तो अनगिनत जनते हैं वहां से खुदा का नूर गुजर रहा है। उस जनतों में रूह अगर कोई पहुंच जाए, वैसे तो जनते खाली हैं, उनमें फिर वहां तक पहुंचती है जहां तक उसका नूर है। लेकिन अगर उन नूरों में से गुजर जाए कोई और अल्लाह की जात अपना नूर ठंडा कर दे, तो उस नूर में उसका एक रूप भी है। वो रूप फरिश्तों जैसा नहीं है, जिनों जैसा नहीं है, इंसानों जैसा नहीं है, लेकिन वो एक रूप है जिसे देखकर रूह कहती है तू तो मेरा अल्लाह है, तू तो मेरा खुदा है। जब मैं वहां सजदा करता हूं तो मैं उस ज़ाते बारी ताला को रूह की निगाहों से देखता हूं, तो उसको देखा जा सकता है, उसका रूप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिरदौस जो है, इनके जो जहान है ये हैं अनगिनत, लेकिन इससे ऊपर और बाला जन्नतें हैं। अभी तक नबियों को खबर ये हुई कि फरिश्ते जो है वो तख्लीक किए गए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। फरिश्तों से पहले वो बहुत सी आला मखलूकें तख्लीक कर चुका था और मैं उनसे मिल चुका हूँ। तो ये जो फरिश्ते हैं, ये जो जिन हैं, ये इंसान, ये तो अभी जुमा 4 दिन की बधाइश है। ये सबसे बड़ा हिला देने वाला तजर्बा हुआ कि अल्लाह की साथ, उससे बढ़ के ये हुआ कि अंधेरों में। ठीक है जाहिर साहब, 2 मिनट पूरे हो गए, पूरे 2 मिनट हो गए, बल्कि 7 सेकंड ऊपर हो गए, क्योंकि हमारे साथ कॉलर्स भी हैं नीचे, उनको भी लेना है हमने, और टाइम भी आपने आधा घंटा 35 मिनट के करीब कहा था। तो हम जल्दी से जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव राइट नाउ? कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग हैं जो आप ईमान ला चुके हैं? माय फॉलोअर्स इज ऑल अराउंड यूरोप, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट। नंबर बता दें, एक नंबर हमें दे दें, नंबर डिजिट दे दें, इतने हैं इस वक्त कई हजार हैं। कई हजार हैं, कई हजार मेंबर हैं, बल्कि इस साल तादाद 900 लोगों की तादाद और बढ़ गई है। अच्छा, मैंने आपके जो YouTube चैनल पे थोड़ी सी आपके बारे में रिसर्च की थी, तो नजर मारी थी, तो आपको पता है आपके YouTube चैनल के ऊपर फॉलोअर्स आपके कितने हैं, वहां पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, जो आपका ऑफिशियल चैनल है? ये मेरे लीडर है। कितने हैं वहां पे सब्सक्राइबर्स, कितने हैं, जरा बताना पसंद करेंगे? ये लीडर हैं जिनको मैं गाइडेंस देता हूँ, और वो आगे से फिर मेंबरों से मेरी जो रहनुमाई है वो अपने अपने इलाके शहर में। सवाल मेरा बड़ा सादा था जाहिर साहब, बड़ा सिंपल सवाल था मेरा कि आपका जो ऑफिशियल YouTube चैनल है उसके इस वक्त कितने हैं सब्सक्राइबर्स? वो सब्सक्राइबर नहीं है, वो 15 लीडर है मेरे। 15 बंदे हैं यानी कि उसके ऊपर? लीडर मैं कह रहा हूँ सर, उसको YouTube की जबान में सब्सक्राइबर ही कहते हैं। तो चलें जी, आप लीडर कह लें। जो जिन्होंने वो लाल बटन दबाया हुआ है सब्सक्राइब वाला, वो कितने हैं, कितनी गिनती है उनकी? मुझे पता नहीं। ठीक है, आपको पता नहीं है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जितनी तादाद आपने बताई है अपने फॉलोअर्स की, उतनी तो बिल्कुल नहीं है, चंद 100 के अंदर है। ठीक है, तो जरा अपने चैनल को गौर से देखिएगा दोबारा। अच्छा, अगले सवाल के ऊपर हम आते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीना, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये काम आपको पता चलता है, पबों में, क्लबों में। तो आप चूंकि दावा कर रहे हैं नबी होने का, तो आप जरा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, शराब वराब पीने के बारे में, और ये डांस वांस और मुजरे शुजरे और ये पार्टियां, इन सब के बारे में? तुम्हें इनकी तकलीफ क्या है? तुम पाकिस्तान के माशरे से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। मैंने ठेका नहीं लिया हुआ यूरोप के अल्कोहल का और नाच और गाने का, ये इनकी एक ट्रेडिशन है, वो करते हैं तो करते जाए। नहीं तो अपना जो नबी होते हैं उनका काम नहीं होता है रोकना? मतलब अल्लाह ने यहाँ पर ये बता देना, आपको क्या गाइडेंस है अल्लाह की तरफ से कि शराब पीना मतलब ठीक है या गलत है? हमें हाँ ना करें, उनको छोड़ें वो जो करते हैं। हम भी नहीं कह रहे कि उनके सर पे तलवार रख के हम मनवाएंगे, हमें तो एक पॉइंट अपना। आपका जाती इसके बारे में क्या हुक्म है? सवाल किया करें, तकरीर ना किया करें प्लीज। तो जवाब इसका ये है, जब मेरे लेक्चर होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, अब आप सुने ना जाहिर साहब, आप भी तो तकरीर करने लग जाते हैं, फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं तकरीर कर रहा हूं। आपको असल में सवाल समझ नहीं आता, मैं इसलिए सवाल थोड़ा आपके लिए जरा खोल के बयान करता हूं। दोबारा सवाल करता हूं, शराब पीना हलाल है या हराम है? इतना सादा सवाल है, आप आगे से तकरीर खुद करते हैं, कहते हैं मुझे है कि तकरीर कर रहे हो। किसी लोग देख रहे हैं और ये स्क्रीन पे मैं कमेंट दिखाता हूं कुछ आपको। अब ये लोगों ने खुद कमेंट्स किए हैं, ये आप देख सकते हैं।
लंबी चौड़ी बात है, मुख्तसर बात करें। लोग नीचे शिकायत कर रहे हैं ना, सुने आप, लोग शिकायत कर रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? तो आप जरा जवाब सीधा सीधा देना। हाँ या ना में जवाब ही नहीं देते होता। मैं आपसे पूछता हूँ, चोरी छोड़ दी? चले आपको 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड देता हूँ आपको, 30 सेकंड के अंदर बता दें अपना जवाब। ऐसा करें, सुनिए जवाब। इसका जवाब ये है कि मेरे लेक्चर्स में मैं हमेशा गाइडिंग करता हूँ कि शराब पीना अच्छा नहीं है, इसके नुकसान से ज्यादा फायदे कम है। तो हमारे जो मेंबर हैं उनमें वो लोग शराब नहीं पीते। अब नाचना रह गया, जो कह रहे हैं आप, सूफी भी नाचते थे, कोई खुदा की मोहब्बत में नाचता है, कोई अपने लिए नाचता है। ये जवाब है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपके जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी वालदा मोहतरमा और आपकी जोजा मोहतरमा, क्या वो आपके ऊपर ईमान रखते हैं या आपको छोड़ के चले गए हुए हैं? सब ईमान रखते हैं। लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने कहा आपकी वाइफ ने तो आपसे डिवोर्स ले लिया हुआ है। वो बकवास है। वो बकवास है, अगर वो बकवास है तो आपने खुद की थी, वो आपके अल्फाज हैं। वो डिवोर्स सुन ले मैं समझ गया हूँ। डिवोर्स एक और मामला है, और वो ये कि वो ईमान रखती है और मिशन में है, ये एक दूसरी बात है। ओके, आपकी अम्मी जान जो हैं, आपकी वालदा मोहतरमा जो हैं, वो आपके साथ रहती हैं या वो पाकिस्तान में ही रहती हैं? अब पाकिस्तान में, कुछ अमेरिका में, वो आपको क्या मानती हैं? आपके बारे में क्या ख्यालात हैं उनके? मेरे बारे में तो सबके ख्यालात अच्छे हैं, मुझ पे ईमान रखते हैं। नहीं, लेकिन ये मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, मुफ्ती मुबशर रजा कादरी के साथ थी, तो उसमें तो आपने कहा था कि जी मेरे से अलग हैं वो। मसला ये है पाकिस्तान बदमाश और डाकुओं का कि वो जुल्म बड़ा करते हैं, डराते हैं, तो उन बेचारों ने अपनी जान भी बचानी है, वहां जा जाके उनको तंग करते हैं, वरना अब वो सब दिल से मुझ पे ईमान रखते हैं। मैं जानता हूँ उनको। दिल से आप जानते हैं, लेकिन आपकी किसी वीडियो में या ओपनली कहीं पे ये चीज उन्होंने एडमिट की है? छोड़े इस बात को, उनको छोड़ दें। कमाल की बात है। घर चलें जी, ठीक है, आप कहते हैं तो छोड़ देते हैं। ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन है और उसके बाद हम कॉलर को ले रहे हैं। हमारे साथ 2-3 कॉलर्स काफी देर से मौजूद हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स होते हैं, इनके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं कि ये कैसा फेल है? ये तकरीर तुम ज्यादा करते हो, बोलते बहुत ज्यादा हो। आपको सवाल समझ नहीं आता जाहिर साहब। मैंने कमेंट्स भी स्क्रीन पे शो कराए हैं, लोग नीचे आपको मेंटल कह रहे हैं, लोग नीचे आपको साइकोपैथ कह रहे हैं। लोग कौन है? मेरा सवाल सुने, जवाब सुने। हाँ जी, जवाब देना। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये यूरोप का माहौल है, तो हम कर रहे हैं अपनी तालीमात से। वो ये है कि अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड खुदा को दावत देकर एक दूसरे का वादा लेकर एक हो जाएं, तो ये बात फिर वहां तक पहुंच जाती है जिसे आप निकाह कहते हैं। हम निकाह से पहले आप देखें ना, जाहिर साहब, फिर यही आप बात करते हैं, फिर आप मुझे कहते हैं मैं तकरीर करता हूं। मैंने क्लियर अपने सवाल में कहा था कि शादी से पहले, शादी के बाद का हमने नहीं पूछा, शादी से पहले का बताएं आप। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, आप इसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? बस खत्म करें बात, उसके बाद कॉलर को लेते हैं। इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब ये है मेरी तालीमात, एक जवाब यूरोप की ट्रेडिशन है। यूरोप की ट्रेडिशन गई भाड़ में, आप अपनी तालीमात बताएं। हम आपसे जाहिद खान साहब से बात कर रहे हैं, यूरोप के प्रेसिडेंट से बात नहीं कर रहे हैं। यूरोप, मेरा जवाब ये है कि जब मेरे मानने वाले मेरी तालीमात पे आते हैं तो मैं उनको बरकतें देता हूं, फिर वो शादी के उसमें मुंसलिक हो जाते हैं। ये जवाब है। सवाल गंदम और जवाब मूंगी की दाल का हलवा, चना भी नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आप शादी से पहले के बारे को सही समझते हैं, गलत समझते हैं? आप मुझे आप लंबी लंबी तकरीर सुना रहे हैं। अब आप, मैंने इस बात को 3 दफा कहा है, अगर तुम्हारे अंदर नहीं पड़ रही है बात, फिर बता देता हूं। आप हाँ या ना में जवाब दें। आप सपोर्ट करते हैं या आप डिनाई करते हैं? आपको क्यों समझ, जनाब जाहिद साहब, आपको क्यों समझ नहीं आती है बात? बड़ी सादा सी आपसे सवाल कर रहे हैं, हाँ ना करें ना। हमारे लिसनर्स बैठे हैं, कॉल पे लेना है, उन्होंने भी आपसे सवाल करने हैं। आप माहौल को खराब ना करें खामखा। हाँ या ना में जवाब दें। कोई हाँ या ना में जवाब नहीं है। तुम्हारी खानदान चोरी करता, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं करता। नहीं करता तो पहले करता था चोरी? नहीं करता था तो पहले तो कोई जवाब ही नहीं है। तुम कहते हो अब नहीं करता तो और जाहिर साहब नीचे अभी एक भाई ने कमेंट किया है, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता, स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है। तो लोग आपके बारे में ना, लोगों की राय बड़ी खराब होती जा रही है आपके बारे में। लोग पागल समझ रहे हैं। आप पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ ना करें, मैंने कॉल पे लेना लोगों को।
जाहिर साहब आप मौजूद हैं? मैं यहीं पे हूँ। अगला सवाल नहीं, अगला सवाल नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब की एक ट्रेडिशन है, मेरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। ओके हो गया, चलें ठीक है, मैंने ठीक बता दी तुम्हें, ठीक है, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, जाहिद साहब खामोश हो जाएं, बस खत्म करें, हमें लग गया पता आपके जवाब का। हमारे साथ जनाब यहाँ पे एक भाई मौजूद है, रद्दे बातल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहब कहाँ से अपना तारफ करवा दें, उसके बाद अपना सवाल करें। आप मेरे से करना चाहेंगे या जाहिद साहब से सवाल? जी, मोहम्मद जाहिद बोल रहा हूँ। मेरा खान साहब से है। इन्होंने दावा किया, ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे अपना दिल का, ये नबी पैगंबर रसूल होने के भी मुदई हैं। मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर जो वहियां नाजिल हुई हैं, जरा हमें वो सिर्फ, क्योंकि वही जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया के ऊपर नाजिल होती है और वो मखलूक के खुदा की भलाई के लिए अल्लाह ताला की कुछ अहकामात होते हैं, कुछ शरीयत नाफिज की जाती है। इनके ऊपर जो वहियां नाजिल हुई हैं वो सिर्फ हमें 2-4 बता दें कि इनके ऊपर कौन सी वही नाजिल हुई है और उसका, उस वही का जो है वो फायदा क्या हुआ है, क्या इन्होंने जो है वो इस्लाह की है उम्मत की। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी जाहिद साहब आप जवाब दीजिएगा इसका जरा। जवाब ये है कि हजार वही मेरी किताबों में मौजूद है। आप उन किताबों को पढ़ें, से कलाम नहीं करती। मुझे अपने पास बुला के आमने सामने होके पर्दों से निकल कर मेरी आंखों और मेरे माथों को चूम के हम कलाम होता है। तो वही का दौर गुजर गया है। अब जो नया दौर शुरू होगा, अल्लाह ताला की जात मिलेगी और आमने सामने होके बात करेगी, और मेरे मानने वालों के साथ भी ऐसा होता है। अगर आपने मेरी वहियां पढ़नी है तो हम कलामी किताब और बहुत सी किताबें वो पढ़ें आप। अच्छा जाहिद खान साहब, थोड़ा सा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। किसी चीज की तस्दीक के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कोई सबूत तो होना चाहिए ना। आप कहते हैं जी मुझसे अल्लाह ताला डायरेक्ट हम कलाम होता है, ये इस तरह के जो दावे हैं वो बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन उसकी तस्दीक कोई नहीं है। आप अगर कहेंगे कि अल्लाह ताला मुझसे हम कलाम होता है तो उसकी तस्दीक आप किस तरह करेंगे? जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसमें कुछ मौजज़ात का जिक्र किया, और वो मौजज़ात जो है वो उसकी तस्दीक है कुरान की, कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है। आप उठ के जो भी दावा कर दें उसकी दलील आपके पास ना हो, आप उसको प्रूव ना कर सकते। मैं दलील दे रहा हूँ, मेरी दलील मेरा कलाम है। जैसे मोहम्मद से पूछा गया था तो दलील कुरान है, मेरी दलील मेरा कलाम है। हम कलामी खुदा के साथ, ये मेरी दलील है। तो वही तो उन्होंने आपसे पूछा है, जाहिद साहब भाई ने यही सवाल किया है आपसे, आप अपना कलाम सुनाए ना, थोड़ा सा उनको कलाम सुनाए अपना। इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी किताबें हैं खान खाने पे, पढ़े, उनमें हजारों कलाम है, पढ़े ना। आपको खुद याद नहीं है अपनी किताबें? मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ, मैं किताबें खोलने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं तो नबी के ऊपर तो जो कलाम होता है वो तो उसको याद होता है, आप कैसे नबी हैं, आपको याद ही नहीं है आपके ऊपर क्या कलाम हुआ है? सबसे पहला कलाम तो ये है खुदा का कि जो मैंने तुझे कहा, जो तूने सुना और देखा, वो इंसानियत को बता, ताकि नया आसमान नई जमीन आए। ये कलाम है। नए आसमान से मुराद खुदा की मंशा पूरी होना, नई जमीन से मुराद जो है वो लोग आएंगे कामिल जो इस जमीन पर बसेंगे। एक कलाम हो गया। दूसरा कलाम हक ताला ने मुझसे कहा, 150 साल का अरसा नहीं हुआ गुजरेगा कि मजहबों की सफ लिपट जाएगी और नई नस्लें तेरे इस कलाम को समझकर नए निजाम में दाखिल होंगे। एक कलाम है, हजारों कलाम है, किताबें लिखे हुए सारे। जाहिद साहब आपने कुछ दावे किए थे, आपने पिछले दिनों भी कुछ दावे किए थे, वो भी आपके जो है ना वो सारे के सारे झूठे हो गए हैं। वो 2020 में फलान हो जाएगा, इंज हो जाएगा, उंज हो जाएगा, सारे के सारे आपके दावे फजूल गए हैं। बहरहाल जी आप इनसे कुछ सवाल और करना चाहेंगे? पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो। मुझे तो अभी तक जो पहला सवाल था उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने दावा कर दिया, मैंने इनको वाज़ेह अल्फाज में बताया कि अंबिया, आप पेशगोई ले लें या कोई मुस्तकबिल की खबर ले लें, अंबिया की सदाकत की दलील होती है। ये कह रहे हैं कि मैं जी अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होता हूँ, अल्लाह ताला के साथ आप हम कलावा था, हम कलाम होने का, लेकिन उसके ऑथेंटिक सबूत मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको प्रूव किया। आपके पास इसकी दलील कोई नहीं है, लेकिन आपसे दावा कर रहे हैं कि मैं जी अल्लाह ताला से डायरेक्ट हम कलाम होता हूँ। उसकी दलील आपके पास कोई नहीं है। आप 150 साल का, मिर्जा साहब ने 300 साल का दावा किया, आपने 150 साल का दावा कर दिया। इस तरह के दावे तो मिर्जा कादियानी के भी मौजूद है कि 300 साल का अरसा नहीं गुजरेगा, लोग इससे बेजार हो जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के मिर्जा साहब के दावे हैं। कर रहे हैं कि तकरीर कर रहे हैं, सवाल किया करें लंबी चौड़ी। जाहिद रुके जाहिद साहब, रुके जरा जाहिद साहब, हम भी इधर बैठे हैं। आपसे जब सवाल किया जाता है आप 2-2 घंटे आगे तवीलें बांधते हैं, आप तो महीदे बांधते हैं। आप सवाल का, आपको हाँ या ना का सवाल सिंपल यस और नो क्वेश्चन किया जाता है, आप आगे 3 घंटे तकरीर करते हैं।
हमारे कोई लिसनर, हमारे कोई व्यूअर जब कोई गेस्ट क्वेश्चन करते हैं, आप बदतमीजी पे उतर आते हैं। आप वो कैसे नबी हैं भाई? आपके अंदर कोई अखलाकियात? और आखिरकार जाहिद खान कज़्ज़ाब इसलिए भाग गया कि वो झूठा है। क्या आपने ये मुकम्मल वीडियो देखी? कादियानी जाहिद खान कज़्ज़ाब के बारे में आप क्या तबसरा करना चाहते हैं? इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। और उसके साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा वापस आएंगे और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए इसे अपलोड करेंगे। अपनी सेहत और ईमान का ख्याल रखें और कादियानी से किसी किस्म का ताल्लुक ना रखें, क्योंकि आपका ईमान और अकीदा आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कीमती है।